Every time I go to people and tell them that I've been to Thailand 5 times, they look at me with like a judgmental eye कि भाई तू 5 बार तुम बस जाओ और खो जाओ भाई, मतलब खो जाओ, तुमको उसके बाद 6 घंटे तुम्हारे कहाँ जाएंगे तुम्हें समझ नहीं आएगा. Will be tricked for a second कि ये बेसिक कॉफ़ी है. मतलब जो हमारे यहाँ पे नेस्कैफे क्लासिक होती है ना, ये उनकी नेस्कैफे क्लासिक. यू फाइंड फ्लेवर्स ऑफ बियर दैट यू वुड नॉट फाइंड हियर इन इंडिया. यू वुड फाइंड फ्लेवर्स दैट आर जस्ट टू फ्रिवलस टू बी बियर फ्लेवर्स, बट येट दिट समहाउ जस्ट मेक सेंस इन थाईलैंड. जो हमारे लिए ब्लू लेज है वो ये उनका ब्लू लेज है. हाई, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू शूट दिस वीडियो टुडे because today I'm going to talk about something that is extremely close to my heart. It is something that makes up the most of my personality. It is something that I'm extremely passionate about. I am probably the most passionate about this, and it is also what I feel is one of the only purposes that I have in life, which is travel. And even under travel, I'm going to talk about my favorite country, my favorite destination, the place that I absolutely love, the place that I call my second home, Thailand. I know it's a weird place to call a second home, but me and my family were just extremely fond of this country. We've been to Thailand 5 times, and we just love how chill the vibe is. Every time I go to people and tell them that I've been to Thailand 5 times, they look at me with like a judgmental eye कि भाई तू 5 बार थाईलैंड जाके क्या कर रहा है, मतलब तू ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा क्या कर रहे हो तुम थाईलैंड जाके कि तुम 5 बार जा चुके हो. बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट. भाई वो बहुत चिल जगह है, एंड इट इज जस्ट अ प्लेस दैट वी लव गोइंग टू. वो इतनी बढ़िया जगह है. आई मीन इफ यू बिन देयर, यू नो हाउ चिल इट इज, यू नो हाउ अमेजिंग इट इज, you know how you can shop, how you can go to amazing restaurants, you can party, you can chill, you can do whatever you want. I mean, Thailand is an amazing place to be at. It is an amazing place to visit. It is an amazing place to travel. And I mean, I haven't tried it yet, but I mean, I'm sure that it must be a great place to live in as well. I haven't been to that country for more than 10 days at once, but I would love to go there and live for like a month or 2 months or whatever. So I've been to Thailand 5 times, and going to a country 5 times gives you an insight and gives you an idea, a perspective of a country that you don't find on vlogs online. You won't find it in any blog, in any newsletter, in any vlog, in a video, or anywhere else on YouTube. Because I mean, I've gone there, I've lived the place, I've been there 5 times, and with gaps. So I've lived through stages in that country, and I have an extremely different perspective of anything that you'll find online. And there are a number of things that I can tell you that when you go to Thailand, what you shouldn't miss. But here are the top 5 things that I could pick out for today's video, and do let me know if you would need another part, because I mean, I could probably make 10 parts of this because I have so much to tell and so much to talk about that country. So let's dive right in. On number 5 of the top 5 things that you shouldn't miss in Thailand is drinks at 7-Eleven. I've seen a lot of reels and I've seen a lot of people talk about how you should not miss 7-Eleven snacks, how you should not miss 7-Eleven food, how they have amazing food. Yes, I agree, they have amazing food. 7-Eleven is an amazing place to be at. It is one of my favorite places to go when I would go to that country, or to any other country that has a 7-Eleven. But the one thing that you cannot miss in Thailand, and this I don't see a lot of people talking about, is the drinks that you get at 7-Eleven. I mean, when you go into the backside of a 7-Eleven and you look at the refrigerators, they're filled with some amazing drinks. They're filled with options that you would not find anywhere else. If you drink alcohol, it is a gold mine. You find flavors of beer that you would not find here in India. You will find flavors that are just too frivolous to be beer flavors, but yet they somehow just make sense in Thailand. भाई जो एनर्जी ड्रिंक्स मिलती हैं, जो बियर मिलती है तुमको, जो चीज़ें मिलती हैं तुमको, the kind of flavors that you get from milkshakes, all of that is priceless, and people end up missing it because वो 7-Eleven के खाने पे ध्यान देने लग गए हैं अब आफ्टर ये रील्स वायरल हो गई हैं. मगर I think you should really go to 7-Eleven and you should go back to their refrigerators, you should open them and you should just see. You should spend a good 15 minutes and look at those refrigerators and look at whatever is inside and just spend your time there, because you will find amazing things to drink. And even if you don't drink alcohol, they have amazing milkshakes, and not just milkshakes, they have amazing juices. I'm sure that they have amazing energy drinks, they have amazing mocktails. It is just amazing, and the kind of variety that they have, जो collection है उनकी, it is amazing. It is so fascinating to look at, and it is so fascinating to live that. I just can't wait to go back. Okay, so number 4 is a very specific thing that you'll find in Thailand. You probably will find it in other Southeast Asian countries as well, but मेरे लिए Thailand जाके एक ऐसी चीज़ है कि मैं घर आ रहा हूँ तो मैं साथ लेकर आऊँगा. You can also find it at 7-Eleven. It is the Nescafe Red Cup coffee. Now, it is not an artisanal coffee. It is not any fancy coffee. It is just the basic Nestle coffee that you get in your hotels. और तुमको B&B में यही मिलेंगे, तुमको hotels में भी यही मिलेंगे. But this coffee is so aromatic, it is so amazing, and it is so superior to the ones that you get in India. कि भाई you will be tricked for a second कि ये बेसिक कॉफ़ी है. मतलब जो हमारे यहाँ पे नेस्कैफे क्लासिक होती है ना, ये उनकी नेस्कैफे क्लासिक है, बट इट इज़ लाइक 10x बेटर. यहाँ पे मेरे को 3-3 साल लग जाते हैं भाई एक अच्छी कॉफ़ी बनाने के लिए. मेरा वहाँ पे इस एक में ही काम हो जाएगा, एंड इट इज़ सो अमेजिंग द अरोमा दैट यू गेट. इट लिटरली जस्ट सीम्स लाइक सच अ प्रीमियम कॉफ़ी व्हेन इट्स नॉट. तो मैं थाईलैंड जाता हूँ, आई लिटरली जस्ट गेट 3 or 4 bags, एंड
इफ़ यू गो, तुम लोग ये ट्राई करने वाले हो, यू वुड नॉट नीड टू बाई दिस, क्योंकि तुम्हारे होटल्स में भी यही पड़ी होगी। इट इज़ दैट बेसिक, ये इतनी बेसिक है वहाँ पे कि तुम्हारे होटल्स में, तुम्हारे BNB में, तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ पे वो जो केटल वाला सेट होता है उसमें नेस्कैफे रेड कप ही पड़ी होती है। तो वो इतनी बेसिक चीज़ है, तो यू वोंट इवन हैव टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू ट्राई इट, तुम वो खुद ही वहाँ से ट्राई कर सकते हो। एंड ब्रो लेकर आना वापस, बिकॉज इट इज़ अमेजिंग। और नंबर 3 एक ऐसी जगह है जो मेरे को समझ ही नहीं आता कि लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इट इज़ अ गोल्ड माइन इफ़ यू गोइंग टू थाईलैंड। इट इज़ जस्ट अ प्लेस जहाँ पे तुम दुनिया की कोई भी चीज़ मिल सकती है तुमको, एंड एट द बेस्ट प्राइसेस विद द बेस्ट ऑफर्स। और मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, बहुत कम लोग देखे हैं जो जिनको इसके बारे में पता भी है। वो बाहर से देखकर आ जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि ये है क्या। एंड दैट माई फ्रेंड्स इज बिग सी। तो बिग सी बेसिकली वहाँ का बिग बाजार है, बट वो सिर्फ बिग बाजार नहीं है। बिग सी में तुमको कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके ग्रोसरी, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, होम एंड फर्निशिंग, क्लोथिंग, सब कुछ मिल जाएगा। एनी टाइम दैट आई गो टू थाईलैंड, मी एंड माई फैमिली गो टू बिग सी एटलीस्ट थ्राइस, एंड इट इज एन एडिक्टिव प्लेस। व्हेन यू गो इनटू बिग सी, तुम वहाँ खो जाते हो। मेरे को और मेरी फैमिली को, हमें आदत दिन चाहिए भाई बिग सी में हर बार, और हम वहाँ से इतनी शॉपिंग करके लाते हैं जैसे पता नहीं क्या है, और हम आधी चीज़ शायद यूज़ भी नहीं करेंगे, बट इट इज़ सो फैसिनेटिंग। तुम बिग सी जाओ, यू विल जस्ट फाइंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तुम ये जो मैं कॉफ़ी बता रहा हूँ, तुमको उसके होलसेल पैक्स मिल जाएंगे वहाँ पे, और मैं वहीं से लेकर आता हूँ, मैं वहाँ से 5-5 पैकेट लेकर आता हूँ भाई उसके। तुमको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। एंड इट इज़ सो फैसिनेटिंग टू गो इनटू अ सुपरमार्केट इन अ फॉरेन कंट्री एंड जस्ट लुक एट द शिट दैट दे हैव, एंड इट इज़ अमेजिंग। आई डोंट थिंक यू शुड कम बैक फ्रॉम थाईलैंड विदाउट गोइंग टू बिग सी वन। बिग सी एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम बस जाओ और खो जाओ भाई, मतलब खो जाओ। तुमको उसके बाद 6 घंटे तुम्हारे कहाँ जाएंगे तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम इतनी शॉपिंग कर लोगे कि तुम्हें मज़ा आ जाएगा। और अगर तुम बजट ट्रिप पे फिर मत जाना, क्योंकि तुम वहाँ पे यू विल स्पेंड मनी, बिकॉज यू विल बी अट्रैक्टेड, बिकॉज यू विल बी फोर्स्ड टू स्पेंड। देयर सो मेनी थिंग्स, देयर सो गुड ऑफर्स, इट इज सो फैसिनेटिंग, आई जस्ट लव इट। ओके, और नंबर 3 इज समथिंग दैट आई डू नॉट कम बैक टू थाईलैंड फ्रॉम विदाउट हैविंग इट एटलीस्ट वन, एंड इट इज द डेयरी क्वीन आइसक्रीम। मैं जब भी थाईलैंड जाता हूँ, डेयरी क्वीन आइसक्रीम पार्लर इज जस्ट अ प्लेस दैट आई हैव टू गो नो मैटर वॉट, बिकॉज आई डोंट नो उसके अंदर ऐसा क्या है, आई डोंट नो वो क्या डालते हैं अपनी आइसक्रीम में, आई डोंट नो उसके अंदर क्या सीन है उसका, बट वो भाई बहुत ही क्रेजी है। मतलब गिव यू कॉन्टेक्स्ट, जो मैकडोनल्ड्स में मैकफ्लरी मिलती है, इट इज जस्ट 100x बेटर। आई डोंट नो वो सेम मटेरियल यूज करते हैं नहीं करते, आई डोंट नो वो सेम चीज़ है भी या नहीं है, आई एम नॉट अ फूड एक्सपर्ट, बट वो भाई बहुत क्रेजी है। और उसमें when you go there and when you order and when you buy it and when you taste it, you will realize that you're just missing out on so much, क्योंकि those are the ice cream flavors that we deserve. That is the ice cream that I deserve to have every single day of my life, and that is why I make it a point that whenever I go to Thailand कि भाई मैं डेयरी क्वीन तो जा ही रहा हूँ, और मैं डेयरी क्वीन जाके उसके कोई ना कोई आइसक्रीम, कोई ना कोई फ्लेवर, कुछ ना कुछ तो करूँगा मैं वहाँ पे। वो इतनी बढ़िया चीज़ है भाई। दे ऑल्सो हैव दीज सीजनल फ्लेवर्स, और वो सब चलता रहता है उनका। और पिछली बार मैं गया था, आई रिमेंबर उनका किटकैट रेंज आई हुई थी, तो भाई मैं तो पागल ही हो गया था उनका किटकैट वाला खा के। उससे पहले गया था, उनकी कोई डार्क ब्लिजर्ड भी रेंज आई हुई थी। तो क्या, इफ़ यू गोइंग टू थाईलैंड, डेयरी क्वीन आइसक्रीम पार्लर प्लीज़ जाओ, और वहाँ पे बस जाओ तुम जाके, वहाँ पे रोज़ जाना। और मतलब तुम अगर एक बार जाओगे तो तुम रोज़ चली जाओगे, आई एम प्रिटी श्योर, आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट डेयरी क्वीन। तो नाउ ऑन टू द नंबर 1 थिंग ऑन दिस लिस्ट। दिस माइट नॉट बी द नंबर 1 थिंग इन जनरल, बट इस लिस्ट में ये नंबर 1 पे है। एंड इट इज़ समथिंग सो स्पेसिफिक कि तुम्हें बोलोगे कि भाई ये ऐसे कैसे बोल रहे हो, मतलब ऐसा क्या है कि तूने सुपरमार्केट और इन तेरी सब चीज़ों के ऊपर इसको रख दिया। बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, जो मैं रिवील करने वाला हूँ यहाँ पे, इज़ एन एब्सोल्यूट लेजेंड व्हेन यू गो टू थाईलैंड। एंड ये कुछ ऐसा भी नहीं है जो तुम्हें शायद और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में मिलता होगा। मुझे अभी तक ये सिर्फ थाईलैंड में दिखा है, कहीं और मिलता तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना भाई, ठीक है। मेरे को गाली देने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे कहीं और नहीं दिखा। मुझे एटलीस्ट बाली में तो नहीं दिखा, बाकी कहीं और मिलता हो सिंगापुर वगैरह में तो मुझे पता नहीं, मैं गया नहीं। एंड दिस माई फ्रेंड्स इज द लेज एक्स्ट्रा बारबेक्यू फ्लेवर। अब ये है कुछ नहीं, ये लेस का एक बेसिक सा फ्लेवर है। जैसे हमारे यहाँ पे 8 फ्लेवर है, उनके वहाँ पे 7-8 फ्लेवर ही हैं, उसमें से ये एक फ्लेवर है। बट जो हमारे लिए ब्लू लेज है, वो ये उनका ब्लू लेज है। तुम अगर ये फ्लेवर खाओगे, इफ़ यू लाइक बारबेक्यू फ्लेवर, और इवन इफ़ यू डोंट, इसमें इतना स्ट्रॉन्ग बारबेक्यू है नहीं, इसका बस नाम बारबेक्यू है। बट वंस यू विल हैव दिस फ्लेवर ऑफ लेज, यू विल नॉट लाइक एनी अदर फ्लेवर। आई एम गोना वार्न यू, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट्स पे रहता हूँ अपनी लाइफ में इन जनरल, एंड आई अवॉइड चिप्स और ये सब। बट मैं थाईलैंड जाता हूँ और मैं ऐसे हो जाता हूँ कि भाई पहली बार मैं 10 पैकेट ले लो 10 पैकेट, और मैं रोज़ खाऊंगा। एंड माइंड यू, विद ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इन बिटवीन मील्स, मैं दिन में कम से कम 4 पैकेट खाता हूँ। जब भी मैं थाईलैंड जाता हूँ, मैं वापस आता हूँ, मैं कम से कम 8-9 पैकेट लेकर आता हूँ। मेरा कोई भी दोस्त थाईलैंड जा रहा होता है, मैं उसको फोटो भेजता हूँ कि भाई ये लेके आ जाइयो और ये खा के आइयो, क्योंकि भाई उससे बढ़िया चीज़ नहीं बनी है दुनिया में। क्योंकि भाई उससे बढ़िया लेस का फ्लेवर नहीं है। ब्लू लेस बहुत पसंद है मेरे को, उसके अलावा मैं और कोई फ्लेवर यहाँ पे नहीं खाता, बट दिस बीट्स द ब्लू लेस। तो अब तुम सोचो, कोई चीज़ ब्लू लेस को बीट कर रही है,
लेस का ही फ्लेवर। तुम भाई उसको ऐसे खा लो, तुम उसको डिप के साथ खा लो, तुम खाने के साथ खा लो, तुम उसको ब्रेड में लगा के खा लो, तुम पिज्जा के ऊपर रख के खा लो, तुम कुछ भी कर लो। लेस का एक्स्ट्रा बारबेक्यू फ्लेवर, इफ़ यू गोइंग टू थाईलैंड आई वुड रेकमेंड कि तुम पहले दिन पे जाके सबसे पहली चीज़ ये करना, because if you try it later on in your trip you will regret it, because you would want more time with those chips and those chips available around you. So if you're going to Thailand, do not miss out on this. It is an amazing thing. और अगर तुम जा रहे हो तो मुझे बता देना, मेरे को DM कर देना भाई, मेरे लिए ले भी आना. So yeah, that brings us to the end of this video. Those were the 5 things that I figured out that I would share with you for this video. मेरे पास और बहुत चीज़ें हैं, थाईलैंड की तो बहुत insights है मेरे पास. मैं तुमको बता नहीं सकता मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे पास क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं वहाँ के, और मैं कितना कुछ शेयर कर सकता हूँ तुम्हारे साथ. इफ़ यू लाइक दिस आई वुड प्रॉब्ली लाइक डूइंग दिस मोर ऑफ्टन. आई वुड लाइक शेयरिंग मोर थिंग्स अबाउट द कंट्री बिकॉज इट इज़ सो डियर टू मी. एंड आई ऑल्सो होप दैट आई विजिटेड अगैन दिस ईयर. तो अगर मैंने वो करा तो फिर वो व्लॉग भी दिखेगा तुमको, और वो मेरे पर्सपेक्टिव के साथ व्लॉग दिखेगा, वो तो क्रेजी हो जाएगा. बट हाँ, so yeah, that's it for this video. Like, share, subscribe. I will see you on Wednesday 6 p.m. Yeah, till then, bye bye.